Hello guys, extremely sorry for being late and uploading the next part. So, after so many days, guys, this is the exam time. As you all are, working hard, I'm also working very hard for you guys. And due to my regular batches and these mock test series, I'm so occupied that I was not able to make time separately for these recording. But don't worry, before the examinations, you will get all the chapters recorded for your revision purpose. So that's my promise. But yeah, sorry for the inconvenience. So let's start with the today's session and the part 4 of the revision series of our FR syllabus. So our next chapter is chapter number 13, and we are talking about the taxation, right? So text for taxation, we have to cover IAS 12, right? So according to IAS tax 12, there are two types of taxes. One is the current tax and another one is the deferred tax, right? So under current tax, the tax which is payable to the tax authority in relation to trading activity of the current period only, right? That means this year's expenses are my current tax expenses. But in case of deferred taxation, we apply the accrual concept, and that is the difference between the tax on the accounting profit and the taxable profit. See, that is the reason behind this is, whenever we prepare our financial statement, we don't prepare them on the basis of the income tax authority. Our year end might be different from their year end perspective. So the difference between the tax on my accounting profit, that means the book profit, and the difference between the taxable profit, because our profit might be different. Maybe income tax authority have calculated our profit on different manner, maybe due to the permanent differences, due to the temporary differences. These all will be covering later on. So yes, that's why there is a difference. And on that difference, the tax calculated is known as the deferred taxation. Now, talking about the current taxation, the current tax is calculated at the taxable profit at into tax rate. Tax rate will be given to you. You guys need not to worry because it's not the taxation paper. So you don't need to, memorize the tax rate. Now, for that purpose, because tax expense is my expense, right? So the entry is tax expense to tax payable in case it is, outstanding. We have not paid it by the year end, right? Or by to credit bank in case we have paid that tax by the year end. So, any under or over provision from the prior year is dealt within the current year tax charges. This does not affect the year end tax liability. Now, what they want to say is कि अगर we have some under provision and over provision. Now, what is under provision and over provision? I have thought that my tax would be 10, right? But at the year end, when actual tax came out, the tax is now 12. So I have created less amount of provision, right? मैंने कम, estimation किया. And the opposite case is my over provision का case. So in दोनों scenarios में, in both of these cases, that effect is on our tax expense, right? So I have created this table, right, in my own time, right? वो मैं आपके साथ जो है share करूंगी. And um, right, you can make it if you want to, right? So this is about profits and this is about tax expense, right? So in case of under provision, and in case of my over provision, right? So in case of my under provision, my profit decreases, right? अब मुझे दोबारा से वो increase करना पड़ेगा. एंड इससे टैक्स एक्सपेंस जो है मेरा इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर मैंने ओवर प्रोविजन की हुई है तो मेरे नेक्स्ट ईयर पे मुझे कम प्रॉफिट्स जो है नेक्स्ट ईयर कम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा. तो यानी कि मेरे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे और मेरा टैक्स एक्सपेंस जो है डिक्रीज होगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस जो है इस वाले सिनेरियो में ऑपोजिट चलेंगे. नाउ any under provision from the prior year is dealt with the current year and does not affect the tax liability. Under provision क्या करती है हमारा, right? Increase the tax expense. Over provision क्या करती है हमारा, right? Decrease the tax charge. So यही I have created the table. You can memorize it from here also.
So now talking about the deferred taxation, right? So tax rule of each jurisdiction are different and hence resulting in the difference between the book's profit and the taxable profit, right? Your books might be different, my books would be different, right? तो अब ये जो है difference हमारा book profit और taxable profit में हमेशा we will be having certain amount of difference. Some of these difference can be temporary or permanent. Deferred tax is calculated only on temporary difference as it is expected to be reversed over a period of time. Now, अब देखो permanent differences कौन से होते हैं और temporary difference कौन से होते हैं. Temporary difference वो होते हैं जो कि after certain period, say it 1 year, 2 year or 5 years maybe, उसके बाद वो रिवर्स हो जाएंगे, हो सकता है बिकॉज ड्यू टू द टाइमिंग गैप, राइट? इस साल इनकम टैक्स वालों ने कहा कि मैं आपको 10% रेट अलाउड करूंगा, बट मैंने 20% के रेट पे अलाउ किया हुआ एक्सपेंस, राइट? सो यस दैट इज, क्या इफेक्ट पड़ेगा? 5 साल का इफेक्ट पड़ जाएगा, बट द इफेक्ट वुड बी सेम आफ्टर द होल लाइफ पीरियड. दैट इज माई टेम्परेरी डिफरेंस. बट परमानेंट डिफरेंस मतलब कि अगर सपोज करो कोई एक्सपेंस है, से इट बी फाइन्स और पेनल्टीज, राइट, एनीथिंग, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैंने उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा है दैट वी आर नॉट अलाउइंग दिस एक्सपेंस. नाउ इफ दे हैव डिसअलाउड इन 1 year, नेक्स्ट ईयर इट वुड बी डिसअलाउड. सो दिस इज द केस ऑफ माई परमानेंट डिफरेंस कि आज ये डिसअलाउड है, आगे भी ये डिसअलाउड ही रहेगा, राइट? सो अब जब हम डेफर टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑलवेज ऑन माई टेम्परेरी डिफरेंस, नेवर ऑन माई permanent difference, right? So temporary difference reverse out in different accounting period. For example, certain time of income and expenses that are taxed on cash rather than accrual basis, certain provision asset based on accounting of different depreciation charge. Now talking about the permanent differences. Permanent difference क्या होते हैं? जो कि adjust नहीं होते different accounting period में, जैसे कि disallowed tax expense. Now, talking about the calculation of deferred tax, if you learn this chart, that would help you out. If you can't understand, somehow some students find this chapter very difficult, but it is not. But if you can't, understand that, just, mug up this. Calculation of deferred taxation. If we have to calculate the deferred tax, and this is, widely tested area. So calculate carrying amount of asset liability, right? Less tax base, right? Carrying amount, less tax base. अब ये क्या है? मेरे टेम्परेरी डिफरेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, राइट? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का डिफरेंस. टैक्स बेस क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली मेरा जो टैक्स आया, जो कैरिंग अमाउंट आया, बेसिकली कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटी. एंड कैरिंग अमाउंट ये कौन सा है? अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, बेसिकली माई बुक्स. सो अकॉर्डिंग टू माई बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, दोनों के बीच में कैरिंग अमाउंट. ये क्यों हुआ? बिकॉज डेप्रिसिएशन या फिर अलाउंस की एक साल ज्यादा मिल रहा है, दूसरे साल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा मैंने एक्सपेंस अलाउ किया हुआ है, इनकम टैक्स वाले कम दे रहे हैं, तो वाइजा वर्जा मे बी ड्यू टू दैट. तो वो टेम्परेरी डिफरेंस है, हो जाएगा इन कमिंग फ्यूचर. दैट इज मेरा टेम्परेरी डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस इज मेरा टेम्परेरी डिफरेंस. अब टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट, दैट इज मेरा डेफर टैक्स. अब ये लायबिलिटी हो सकता है, एसेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, राइट? अब अभी तक अगर मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, इसके अकॉर्डिंगली पिछले साल का बैलेंस पड़ा था, तो मैं इस साल में क्या करूंगी? चार्ज या फिर प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या आंसर आया, वो इस साल में डिफरेंस आएगा, राइट? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर टैक्स क्या होगा? प्लस इंक्रीज इन डेफर टैक्स प्रोविजन, ठीक है? अब ये देखो, मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी? अगर मेरी डेफर टैक्स बढ़ रहा है बेसिकली, तो इसके लिए मैं क्या एंट्री करूंगी, राइट? मतलब बढ़ना, प्लस इन द सेंस बढ़ रहा है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स. और अगर ये कम हो रहा है तो ऑपोजिट एंट्री, दैट मीन्स कि मैं एक्सपेंस क्रेडिट करूंगी. अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स मैं इसको डेबिट करने वाली हूँ. कम हो रहा है तो मैं एक्सपेंस क्रेडिट करूंगी, ऑपोजिट एंट्री होती है. एंड लाइबिलिटी वहां बढ़ाना और दूसरे केस में लाइबिलिटी वहां कम करना. Now, deferred tax to be calculated on the following: asset that have definite pattern of depreciation as per accounting rules and tax rules. So basically कहाँ कहाँ पर लग सकता है? जहां पर मेरे कोई assets होते हैं जिनका depreciation different होता है. Loss expense reported in accounting books but have released related tax relief available.
Development costs are capitalized and amortized to P&L in future, but were deducted for tax period as incurred. राइट या फिर एसेट revalued for financial statement purpose but not revalued adjustment take place for tax expense. In case of lease, the lease liability and right to use might be difference as per books and tax record resulting in deferred taxation. So ये सारे क्या है मेरे deferred taxation के सिनेरियोज जहां जहां पे deferred taxation लग सकता है. And some other points जैसे कि no deferred tax to be calculated on goodwill since goodwill is never recognized in textbooks, hence it is a permanent difference. goodwill पे नहीं होता है, ये हमने पहले भी बात की हुई है goodwill वाले चैप्टर में, आगे भी करेंगे. And deferred tax is not recognized if insufficient taxable profit are expected to be available in future against which the deductible temporary difference can be utilized. Basically हम ये तब करते हैं जब मुझे पता है कि next period में reversal होने के chance है. But if I find that in the next coming period I can't adjust that, अगर ये adjust ही नहीं कर सकते तो मैं ये taxation जो है कहाँ से recognize करूंगी? If the item giving rise to deferred tax is accounted in statement of P&L, then the deferred tax to be treated in the statement of P&L. So अगर जिस सिनेरियो के कारण अगर ये डेफर्ड टैक्सेशन अराइज हो रहा है वो P&L बेस्ड आइटम है, तो डेफर्ड टैक्सेशन का जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो भी P&L में होनी चाहिए. बट येस अगर ये OCI बेस्ड है तो ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट में हम रिवैल्यूएशन में कर रहे हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन में होगा. मतलब बेसिकली जो मेन एरिया से हमारा एडजस्टमेंट होनी है हम डेफर्ड टैक्सेशन के एडजस्टमेंट भी उसी मेन एरिया में करेंगे. Recognized as non-current, deferred tax asset and liability can be set off it has a legally enforceable right. So this was all about deferred taxation. It is not covered in very detail over here. उसके लिए आपको पूरी डिटेल book जो है read करनी पड़ेगी. Now, next one is our chapter number 14, earning per share. So for the EPS calculation, हम देखो earning per share वाले chapter में we have various topics, right share, diluted share, basic shares, right? So first is the easiest one, basic EPS. So basically earning per share name से ही पता चल रहा है, profit attributable to equity shareholders, earning per share. यानी कि अर्निंग दैट मीन्स प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द बोनस शेयर. Bonus share does not provide additional resource to the issuer, which means that the shareholders own same proportion of the business before and after the issue. That means bonus shares के केस में shareholders पैसे नहीं देते हैं. We know that they get these shares just at a free of cost. So additional resource नहीं आ रहा है हमारे पास. Suppose करो if some person was having 2 share, उसको 1 share मिल गया. अब उसके पास 3 शेयर हो गए, राइट? बट उसकी इक्विटी का प्रोपोर्शन सेम ही रहा, ये उसका इफेक्ट होता है. So in the case of bonus issue, it is assumed that the share are issued from the first day of the year, and we have covered these things in our daily classes that while their calculation assume that कि इनकी starting में ही issue हो रहा है and उसके बेस में हम proportion जो है calculate करते हैं. Comparative figures are restated to allow for the proportional increase in share capital caused by the bonus issue. Doing this treat the bonus issue as they have been always been in existence. So comparative figures that means पिछले साल की previous year की figures को भी हमने वैसे ही proportional base पे increase करके चलना है so that a better comparison purpose. Now टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज माई राइट इशू. राइट इशू के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले TERP दैट इज मेरा थ्योरेटिकल एक्स प्राइस निकालना होता है. देन उसके बाद हम क्या करते हैं? बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस बिफोर द इशू divided by TERP. Then we calculate the weighted average number of shares, and then in the last one profit divided by weighted average number of share, that is mera earning per share. Earning per share formula is always same. Now next is diluted earning per share. Earning प्लस नोशनल एक्स्ट्रा अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर प्लस नोशनल एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर. ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर न्यू शेयर होल्डर्स जब आएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की पावर जो है डाइल्यूट होगी, उनकी शेयर होल्डिंग जो है डाइल्यूट होगी. सो दे वांट टू नो आफ्टर डाइल्यूशन का इफेक्ट. दैट्स व्हाई फॉर true picturization we calculate the diluted earning per shareholders. Next is the option and warrant to subscribe for shares. An option or warrant give the holder the right to buy the share at some time in future at a predetermined price. Cash is received by the entity at the time option is exercised.
and the EPS calculation is required in such a case. The total number of share issued on the exercise of the option or warrant into split into two. तो हम कैसे निकालते हैं कि अगर वो कैश मतलब यूज हुई है फेयर वैल्यू के बाय के टाइम पे एंड द रिमाइंडर इज ट्रीटेड लाइक अ बोनस। तो बेसिकली हम इस वाले सिनेरियो में इसको डिवाइड कर देते हैं कि मैंने कितना पैसा फेयर वैल्यूएशन के प्राइस पे, बेसिकली एवरेज प्राइस भी हम उसमें ले सकते हैं, कैश कितना हमारे पास आया होगा, कैश वाला पोर्शन एंड बाकी बचा हुआ मेरा बोनस प्रोपोर्शन। अब वो बोनस प्रोपोर्शन के लिए हम फ्री शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट, number of options into fair value minus exercise price divided by fair price, and this is very important and easy formula. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ईपीएस। नाउ अगर हम ईपीएस की बात करें तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ईपीएस फिगर इज यूज्ड टू कंप्यूट द मेजर स्टॉक मार्केट इंडिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। द पीई रेशियो, द कैलकुलेशन इज एज फॉलोज। तो अगर ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो। बेसिकली हमारा प्राइस, प्राइस क्या है? मार्केट वैल्यू की आज की डेट का उसका प्राइस करना है, डिवाइडेड बाय अर्निंग, अर्निंग इज माय अर्निंग पर शेयर. So EPS is better indicator to compare the performance of the company year on year basis and with of that of competitors. Because हर कंपनी की इक्विटी डिफरेंट होती है, डेट डिफरेंट होता है, तो अर्निंग पर शेयर के बेस पे हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं अपने साथ भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली, एंड वी कैन कंपेयर इट विद आवर कॉम्पिटिटर ऑल्सो. So diluted earning per share serves as a warning to equity shareholders that in return of the investment may fall in future. So अब जो diluted earning per share की बात करें, जो हमने अभी किया था, that means future का इफेक्ट देखने के लिए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि यस जो करंटली शेयर होल्डर्स हैं उनको आइडिया लग जाएगा इफ न्यू शेयर होल्डर्स एंटर इन, राइट, तो उससे उनके रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज एक पाई है, एक पाई को पहले दो लोग खा रहे हैं, अब उसी पाई को अगर चार लोग खाएंगे तो दे विल गेट अ हाफ बाइट, राइट. सो दे वांट टू नो कि उनका उसके बाद कितना शेयर बचेगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीएस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो. Now, next is very easy chapter, that is chapter number 15, IS 37 and IS 10. So basically it talks about the provision, contingent liability and contingent assets. So provision क्या होता है, contingent liability क्या होता है और contingent asset. Somehow student have the confusion between provisions and contingent liability. So provisions को recognize करने के लिए हमारे पास होती है three condition. If these three conditions are met, then recognize condition. But if any of these condition is not met, then you can show them as a contingent liability, and contingent asset is opposite to obviously my contingent liability, because एक person के लिए liability है, दूसरे person के लिए asset है. So yes, provision को हमने कब recognize करना है? If it is obligation, legal हो चाहे constructive हो, legal that means by the way of law, operation of law, right, any contractual arrangement, or constructive that means I have created a valid expectations in your mind due to my past practices that I will perform such a task which I was doing with other persons in previous years, right? So and obligation होनी चाहिए, that is probable outflow of economic benefit resulting from the past event and can be reliably measured. तो अगर ये तीनों conditions fulfill होती हैं, then I will be recognizing provision, otherwise I can jump towards my contingent liability. ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, दैट इज माई पोटेंशियल लाइबिलिटी, वहां पर पॉसिबिलिटी हो जाती है, राइट. दैट मीन्स की लाइबिलिटी हम के केस में देखते हैं कि पॉसिबल होगा या फिर उसकी रिलायबली मेजरमेंट नहीं हो पाएगी, एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा अमाउंट का. सो ये कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं जब हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के केस में जाते हैं रादर देन प्रोविजन. अब जो हमारी प्रोविजन होती है ना, मैं उसको पीएनएल में एज पीएनएल में दिखाती हूँ और साथ साथ मैं अपनी लायबिलिटी क्रिएट करती हूँ. बट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो होती है ना, मैं उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाती हूँ. आई जस्ट शो देम एज अ डिस्क्लोजर नोट्स इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में, राइट. सो एंड अब अगर मुझे लाइक्लीहुड देखना है कि यस पोटेंशियल उसके लिए, सो मैं क्या करूंगी, रिमोट है अगर, दैट मीन्स आई विल हैव टू इग्नोर नाइदर प्रोविजन नॉर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. बट इट इज पॉसिबल देन डिस्क्लोज एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. बट इफ इट इज प्रोबेबल देन डिपेंडिंग अपॉन कि उसका एस्टिमेशन है, रियलाइबली मेजरमेंट है, देन आई विल चूज बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. Now talking about contingent asset, I will be disclosing it only when it is probable. In case of possibility or remote chances, I will be ignoring that.
Now, there are few more points about my provisions, right? No provision to be created for future operating loss because we can ignore them, right? So if the things which I can ignore, I don't need to, recognize a provision for such expenses. And provision to be recognized towards onerous contract, that is loss making contracts, वो contract जो कि unavoidable, जो लॉस है वो हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट, दे आर माई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, एंड उनके केस में हम प्रोविजन जो है दिखाते हैं. Provision is not to be recognized for the cost of future repairs and replacement because obviously future है, future वाले expenses को हम ignore कर सकते हैं. Provision is recognized for environmental damage if the past events create an obligation to for repairs. Obviously अगर past में कोई इवेंट हुआ है जिसके कारण मुझे पता है कि फ्यूचर में वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है उस टाइम पे, तो मैं उसको जरूर दिखाऊंगी. एंड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इज टू बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. The constructive obligation exists only if the detailed plan for restructuring that the identified the business location employees affecting it as an estimation of the cost timing involved can be made. So restructuring that means I want to change my business का structure, ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये हम सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करते हैं इफ इनकी कंडीशन जो है मेट हो जाती है. उन कंडीशंस में से एक कंडीशन हमारी है that I have detailed formal plan that exists and my management is committed and my management has you know टोल्ड इट्स प्लान, उसने उन लोगों को बता दिया है, उन पर्सन्स को जो कि उस रिस्ट्रक्चर से अफेक्ट होने वाला है, बिकॉज मैनेजमेंट कैन चेंज देयर माइंड इफ इवन इफ दे हैव प्लान. So employee effective have a valid expectation that the restructuring will be carried out either because of the plan have been formally announced or because the plan has stated to be implemented. So या तो वो plan start हो चुका है या फिर announcement हो चुकी है, तभी मैं restructuring provision जो है दिखाऊंगी. Now, next is my IS 10, and this is one of the easiest standard. Ab event occurring after the reporting period. Reporting period that means my balance sheet period. So उस events after my balance sheet period के बाद होने वाले events. Now you will be saying, ma'am, it's after the balance sheet date, so we should ignore them or we should treat them in the next coming year. No, we have to think about them according to the thing that whether they are adjusting event or whether they are non-adjusting event. Depending upon them, we decide that yes, are we going to give the treatment in this year or in the next year. So yes, event occurring after the balance sheet date but before the approval of the financial statement, because the circle is just like this. Say like this is my whole year, right? This is my balance sheet date. Now my management is going to approve its financial statement here, right? So approval is here. This is my balance sheet date. So they are my after reporting period. They are talking about this time period, right? So depending upon whether they are adjusting or whether they are non-adjusting event, we will be treating them here, right? So yes, event which occur after the year end but before the financial statement are approved are covered under my IS 10. If the condition exists at the year end, that means at this date there is a condition. Just like suppose I have a inventory and I have sold that inventory at year end and below then below NRV, right? Or at NRV, right? So that means they were present, inventory was present at that date. Uh, I have debtors, right? Now my debtors go bankrupt, right? So I was having those debtors at my balance sheet date on that date. That means there could be a possibility on the balance sheet date they can be bankrupt. So, or any fraud, any error, or if there was a court case going on and I knew that at that balance sheet date that court case was pending. So that could be the case that I will win, or that could be the case that I will lose. So they are after ending period, right? After balance sheet, events, but they were having their possibility or they were having their existence as the balance sheet date. So due to that reason, I will adjust them in the balance sheet of the year just have ended. अब the condition does not exist at the year end. इनके बारे में दूसरी वाला सिनारियो क्या है? One scenario is the condition existed, right? Adjust them. Now the conditions were not existing, but
not existing but they are impacting on the going concern, then I will have to think that, right? और कोई और नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बट उसका मेरी मटेरियल इवेंट्स का इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज इम्पैक्टिंग, राइट? सो उस वाले सिनेरियो में लाइक अगर मटेरियल इवेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है देन आई विल डिस्क्लोज इट इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजिंग इन माय नोट्स। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कोई फायर होगी। अब देखो फायर पहले एक दिन पहले नहीं पता लगेगा कि फायर लगने वाली है। सो दे आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ माय नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट? फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस, सो दे आर जस्ट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इनके बारे में मुझे डिस्क्लोजर करना होता है इफ दे आर मटेरियल। Now, it's one of the easiest chapter which you have done in your class plus two for the first time, right? So, statement of cash flow IS 10, 7. So, cash flow enable the users the financial statement to assess the liquidity, solvency and financial adaptability of the business. अब cash flow क्या है basically? हमारा जो हम बैलेंस शीट P&L बनाते हैं that is based on my accrual concept, right? Whether it is received or not, we have to just show them, right? बट कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो के वैसे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन आवर सिलेबस वी हैव जस्ट इनडायरेक्ट मेथड ओनली, राइट? Now, business can be profitable, right? But there might be scenario that even if being profitable, I don't have sufficient cash at my home, at my bank to pay my debts, to pay my current liabilities. So for that purpose, we prepare the cash flow statement just to know that how much cash we are getting from our daily operating activities, from the business activities, how much cash we are getting or that is floating out from our investing activities, like sale purchase of some asset, or how much cash we get from our financing activities. Are we getting cash from share issue, or are we getting cash from our loans, these kind of things. So the purpose of cash flow is this. So for cash flow you have to learn a performer. The performer is here, and that I assume that every one of you know it, because that was first covered in our class plus two curriculum, and all of you have reached F7. So I presume that you all are plus two pass out, right? But still the performer is here. If any one of you have forgotten that, then it's here. I'm not talking in detail about the performer. ये आप लोग अपने आप कर सकते हो, राइट? बट यस वी हैव थ्री एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिंग जो कि मेरे एसेट परचेज और सेल रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, बेसिकली फाइनेंस और बिजनेस के लॉन्ग टर्म पैसे से रिलेटेड होता है। इन सब का कैश का टोटल, आई हैव टू बैलेंस शीट इन माय क्वेश्चन, आई हैव टू P&L का ऑप्शन, एंड ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस के डिफरेंस से जो है हमारा मैच होता है, एंड वी कैन गेट एन आइडिया एट दैट पॉइंट ओनली कि ये मेरा क्वेश्चन जो है सही हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? सो नेक्स्ट इज माय chapter. you know there are certain just advantages and disadvantages of cash flow. Let's discuss it, right? It may assist users of the financial statement in making judgment on the amount, timing and degree of the certainty of future cash flow. Because if I knew that how much cash do I have, I can get the idea that yes, this at this point of time, at this this is certain that from these activities I will definitely get cash. एंड यस मुझे पता चल जाएगा कि यस कि मैं कितनी प्रॉफिटेबल हूँ एंड कितना, बिकॉज ऑपरेशंस में जितना ज्यादा पैसा होता है ना, दैट इज द चांस कि मैं प्रॉफिटेबल ज्यादा हूँ. And yes, analysts and other users of the financial information often formally or informally develop models to assess and compare the present value of future cash flows of entities. Historical cash flow information could be useful to check the accuracy of past assessment. So basically, we cash flow is based upon future things, right? So इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी पास्ट की असेसमेंट जो हमने की थी वो सही है या नहीं है, एंड उसके बेस पे हम फ्यूचर का भी एस्टिमेशन ले सकते हैं, राइट? And basically that somehow linked to my balance sheet, like my balance sheet liquidity, viability, adaptability, we think like that. And yes, isko manipulate karna is somehow difficult as compared to मेरा cash जो मेरे accrual concept के basis पे होता है, right?
limitation भी है because it's based on the historical, so that means we can't get future information correctly. And yes, somehow we can manipulate that. Somehow I ask my people to make me payment later on, अभी मत करो मेरा year end होने वाला है, ऐसे वाले scenarios. And yes, it is necessary for short term, but yes, for the long term profitability we need to consider the long term profits rather than just focusing on the short term income, right? So yes, if we talk about interpretation of cash flow, because we have interpretation in our syllabus, so we get the management, financial reporting, capital expenditure related areas or dividend related areas in our interpretation question. Now guys, we have our major area, which is consolidation. This is my favorite part in FR syllabus because I knew that that is gonna to be tested definitely in paper, and somehow I like very much. So let's start with the consolidation. So guys, for consolidation, you have to, remember one thing, that we have two companies in case of consolidation, minimum two companies. One is parent company and another one is subsidiary company. So the parent company is the one who is having the control over another company. Control, that means that person is the having the ownership, right? The authoritative. पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करती है। अब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वी नीड three conditions, and I have made a mnemonic for my own at my own time, so I will be sharing that mnemonic also, right? So उससे पहले जो है हम थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंड करते हैं that yes, you have to consider that for the purpose of classification of investment, because consolidation के हमारे पास जो है टोटल डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स हैं, जैसे कि एसोसिएट रिलेटेड पे एरिया है, पेरेंट सब्सिडरी रिलेटेड एरिया है, डिस्पोजल का एरिया, राइट? सो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, राइट, यू हैव टू कंसीडर अबाउट दैट कि जो वो इन्वेस्टर है, दैट मीन्स जो मेरी पेरेंट कंपनी है, does that company is having the sole control right over the industry, right? So अगर sole control है या joint control है, so yes, if it is having sole control, that is that another person, another company को हम क्या बोल सकते हैं, subsidiary company. So there is one company, that company is having control, right, इस company के ऊपर. सो IFRS 10, अप्लाई IFRS 10 और कंसोलिडेशन करोगे और डिस्क्लोजर करोगे, आपको इतना डिटेल में स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है. सो डज द इन्वेस्टर हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द एंटिटी, देन उस वाले सिनेरियो में ज्वाइंट एग्रीमेंट के केस में IFRS 11 लगाओगे. एंड ये इसमें अब मुझे देखना है कि यस कि मेरे पास डिफरेंट का है या फिर सिंगल एंटिटी का जो हमारे पास इंटरेस्ट है. और अगर ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है तो यस, क्या मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम क्या आ जाएंगे, एसोसिएट. अब पेरेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताती हूँ. जैसे कि ए कंपनी है, राइट, आई हैव अ कंपनी बी, आई हैव अ कंपनी सी एंड आई हैव अ कंपनी डी, राइट? इफ ए कंपनी is having suppose 60% shareholding of B company. That means B company is subsidiary company of A company. Now I have another company. The name of the company is say Potters C company, and in the case of C company, A company is having 40% shareholding. If any company is having shareholding between 20 to 50%, right, then that is the case of associate. If I have the shareholding more than 50%, then that is a case of subsidiary. But if A company is having shareholding of D company less than 20%, then that is normal investment, like I buy share of Tata, Reliance or any other company. So yes, this is just a basic chart. And for the purpose of consolidation in this chapter, you have to consider about one thing, that is control. And we can get control if three conditions are satisfied. PEA. That means I have a
power over investee. I have exposure to write our variable return. Although in our paper we will be getting information that yeah, they are parent or subsidiary or parent or associate. But yes, if they are not directly mentioning, they will be mentioning a shareholding percentage, or they will be mentioning us total number of share and the number of share acquired, and from that we can calculate the percentage and we can get the idea that it is parent subsidiary relationship or parent associate relationship or a normal investment. So yes, exposure to right variable return. That means basically talking about benefits and ability to use that power over those variable returns. So if these three PEA conditions are satisfied, that means I have control over the investee and that is a parent subsidiary relationship. Now, so yes, if you know, if it is a joint control, then that is joint venture. Then I will be applying IS 28 and right and making disclosure according to IFRS 12. And if it is not, joint control, then I will be talking about anything else. और yes, मुझे बस ये देखना है आपके talking simply आपको जो है parent, subsidiary और associate का relationship के ऊपर focus देना है. Now, yes, द निमोनिक विच आई हैव क्रिएटेड इट कि यस कि अगर कंट्रोल है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा पी ई ए दैट इज पावर ओवर द इन्वेस्टी. Investor has exposed or has right to variable return from the investment, and investor can affect those return through its power over the return. Basically ये तीन conditions I have to consider. नाउ कंट्रोल के टेस्ट के लिए आई हैव टू थिंक अबाउट द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट क्या मेरे पास है, दैट आई हैव 50% और मोर वोटिंग राइट. मेरे पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है राइट, एंड आई हैव टू कंसीडर अबाउट द इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप विद द अदर पार्टीज दैट मे इनेबल इन्वेस्टर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी. मे बी आई हैव लेस देन 50% शेयर होल्डिंग, be it could be 47 or 48 or 45 percentage, right? That could be the case. But I knew that the other parties of 5% shareholding or 10% shareholdings are under my group or are like my friend circle groups, right? So in that case I have the control. I can mold them and I can change and I can take majority of decisions. Then that's why I have control, and if I have a control, I am the parent of that another company. सो यस पर्पस ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब देखो कि हम ये इसलिए बनाते हैं बिकॉज सो दैट वी कंसीडर देम एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट. एंड यस इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने मेरे पास दूसरे कंपनी के हैं मैं वो देख सकूं, मैं देख सकूं कि यस ऑब्लिगेशन कितना है पूरे ग्रुप का एज अ होल. एंड यस शो द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप achieves with the its resources. So basically I can get the idea that yes, within the given resources what kind of benefits I am getting from the particular group. Now methods of consolidation. Consolidated financial statement are prepared by replacing the cost of investment with the individual assets and liability underlying the investment. So if we talk about the control, तो मैं control आएगा मेरे पास तभी मेरी consolidation financial statement बनेगी. And yes कैसे बनती है कि yes कि मैंने कितने पैसे दिए आपकी कंपनी को acquire करने के लिए, यही normal sense में, right? So if the subsidiary is only partly owned, all the asset and liability of subsidiary are still consolidated, but the NCI interest in those assets are also presented. See, if I have acquired whole of your shares, then you could be easily able to say that yes, I have owned you. But even if I have owned 60%, 70% or 80% or could be less or more, even though I will be making balance sheet of all the assets and liabilities because I can't show that like half computer, right? So I will be preparing balance sheet of all of asset and liability of subsidiary company, including my own, right? But I will be showing NCI shareholders interest. NCI कौन से होते हैं? That means वो shareholders जो कि मेरे पास बचे कुछ, we can say that the remaining portion. If I have acquired 60%, then the remaining 40% shareholder persons are my NCI one.
And yes, in case of consolidation, if there is any intra group transaction जो होती है, that means receivable payable common, right? पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई सेल की हुई है, right? So उस सिनेरियो में सेल्स और परचेज एंड रिसीवेबल पेएबल्स, राइट, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है, that means आपस में in between the group I will be removing the effect of those, because I have to receive, I have to pay, that means eliminate that properly from the group. Now, in consolidation, we deal with three standard: IFRS 3, that is business combination; IFRS 10, that is consolidated financial statement; and IAS 28, that is investment in associate and joint ventures. Now, exception from the group financial statement. Now, in these scenarios, I am allowed to get exception. I am exempted to prepare the consolidated financial statement. That means I need not to show the subsidiary financial statement in my own financial statement. Now, what are those exceptions? The parent itself is a wholly owned subsidiary or a partly owned subsidiary, and its owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about and do not object the parent not preparing the consolidated financial statement. See, if I am the parent company of A company, but I am already the subsidiary of company, suppose Z. So I am exempted to prepare the consolidated financial statement including A, because Z company will be preparing financial statement of me, and in me that A will automatically be covered, right? The parent debt or equity instrument are not traded in public market. That means a non-listed company's case. In that case, it's just, there are no external shareholders, right? The parent did not file its financial statement with the Security Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing or any class of instrument in public market. Same scenario. Ultimate parent company produces the consolidated financial statement that comply with IFRS standard and are available for public issue. That is the first scenario जो कि हमने यहाँ पर किया उसी से relate. And when the exemption from the preparation of financial statement is permitted, IAS 27 financial statement requires that the following disclosure are made. The fact that the consolidated financial statement have not been prepared. तो अगर मुझे यहाँ पर exemption मिली है that I need not to prepare consolidated financial statement, then I have to make disclosure that yes, I am not preparing this. I am not preparing consolidated financial statement, और कि yes कि मैं exempted हूँ, ये मुझे बताना पड़ेगा disclosure notes में. Now, list of significant investments, subsidiary, associate, including percentage of their shareholding, principal place, ये सारा कुछ भी मुझे बताना पड़ेगा. And yes, the base on which the investment listed above have been accounted in its separate financial statement. तो मैं consolidated नहीं बता रही हूँ, बना रही हूँ, but I have to make the detailed information about the investment on the business regime itself. Other reasons for exclusion of subsidiary. There are few more reasons, right? Subsidiaries held for sale. Remember, we have done the IFRS 5 non-current held asset held for sale or discontinued operations. So in this case, if I have acquired a company and I have acquired, just as a purpose of, investment, कि इसके आज खरीद लेते हैं, थोड़े टाइम बाद बेच देंगे, उस वाले सिनेरियो में I won't be, making consolidated financial statement. So held as a current asset investment at lower of carrying amount and fair value less cost to sell, I will be showing it like that. And yes, materiality. The accounting standard does not apply to immaterial item. Therefore, immaterial item deemed not to be consolidated. Suppose if Ratan Tata acquires me, for him, I am totally immaterial as of now. In future, I hope that I am not immaterial for him, right? So in that case, he don't need to waste his time for preparing financial statement along with me. So in that case, they are exempted. So other points, IFRS 10 state that where reporting date for the parent entity is different from the subsidiary, and the subsidiary should prepare additional financial information as of the same date and the financial statement of the parent unless impracticable to do so.
सो बेसिकली क्या होता है दैट पेरेंट सब्सिडरी दोनों कंपनीज को अपना रिपोर्टिंग डेट जो है सेम रखना पड़ेगा, तभी कंसोलिडेशन हो पाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो सब्सिडरी कंपनी जो है एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी अकॉर्डिंग टू द पेरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड की डेट के अकॉर्डिंगली, अनलेस इट इज टोटली इम्प्रैक्टिकेबल। और अगर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल है तो यस, वो टाइम गैप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है 3 महीने का मिलेगा, उससे कम ज्यादा नहीं, कि हम आगे पीछे नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 महीने का वेरिएशन हम कर सकते हैं। एंड यस, if a member group uses the accounting policy other than those adopted in the consolidated financial statement, like for the transaction and event circumstances, appropriate adjustment are made to that group member in preparing the consolidated financial statement to ensure the conformity with the group accounting policy. Basically, if I am, using one policy, then सारे group में भी वही same policy होनी चाहिए. They are just talking about that. Now, this is the main chapter of consolidation, guys. Chapter number 17 is fully available on my YouTube channel, right? You can watch if you want. Chapter number 18 ka bhi somehow parts are available. So if you want detailed information, you can watch it from that video, right? So consolidated statement of financial position, chapter 18, right? So whenever we have to calculate this thing, हमेशा याद रखना consolidation के केस में just it's a matter of 5 working notes mainly, and yes, you are good to go. So yes, consolidation के केस में मुझे क्या करना है, स्टेप 1 मुझे ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है, दैट मीन्स पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी का या पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट का। एंड यस, द फन एंड द फोर मोस्ट प्री कंडीशन फॉर एसोसिएट इज for preparing associates financial statement, that is mandatory, राइट, कि पेरेंट कंपनी के पास एक सब्सिडरी जरूर हो। बिफोर दैट वी कांट स्टार्ट पेरेंट एंड एसोसिएट का रिलेशनशिप, दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं पेरेंट एंड एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं। दैट इज पॉसिबल, पेरेंट एंड सब्सिडरी अलोन है, बट पेरेंट एंड एसोसिएट अलोन इज नॉट पॉसिबल। Now, next is the calculation of net asset of subsidiary. This is my working note number 2. And ये working note आपको याद होनी चाहिए. If you are not able to learn working notes, then that could be a serious trouble for you. Now, calculation of net asset of subsidiary. That is my pre, post and total reporting date material. यानी कि प्री पोस्ट एंड दोनों का डिफरेंस, दैट इज मेरा ये। अब शेयर कैपिटल, ये ज्यादातर हमारा चेंज नहीं होगा। एंड यस, रिटेन्ड अर्निंग, राइट, रिटेन्ड अर्निंग दैट इज मेरा सारा इक्विटी वाला पोर्शन है। सो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, अब इसी वाले में अगर मेरा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स में कुछ इंक्रीज हो रहा है, आई विल बी एडिंग इट ओवर हियर, राइट। लेस कोई डेप्रिसिएशन, अगर मेरा एसेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, राइट, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। देन उसके बाद unrealized profit of inventory, subsidiary sales to parent. Basically, if parent company sells something to subsidiary, subsidiary बेचती है कुछ parent को, तो obviously मैंने मार्केट के प्राइस के ऊपर बेचा होगा, बट वो मार्केट का प्राइस मेरी पॉकेट में अभी आया ही नहीं है। सो आई कांट शो दैट प्रॉफिट, क्योंकि ये गुड्स जो हैं अगर मेरे पास पड़ी हैं, इफ दे आर सोल्ड आउटसाइड, देन वो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका होगा। बट अगर पी ने एस को या एस ने कोई गुड्स पी को दी हैं और वो मोर देन मीन्स कॉस्ट पे दी है, राइट, तो अकबर ये बिकी ही नहीं है गुड्स, तो मेरे पास ग्रुप में ये कॉस्ट जो है, ये एसेट जो है ओवरस्टेट होकर पड़ा होगा। तो यस, वो प्रॉफिट दिखाया होगा हमने, बट वो प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रुप में ही पड़ा है, तो वो उसको हम रिमूव करके चलेंगे। एंड यस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द एसेट्स, अगर कोई एसेट्स है उस वाले सिनेरियो में भी यही होगा। एंड यस, अगर मेरा कोई एसेट अगर ट्रांसफर हुआ है, पेरेंट ने कोई सब्सिडरी को सपोज करो एसेट बेचा है, तो अगर एसेट बेचा तो मैंने एसेट ज्यादा प्राइस पे बेचा होगा, तो मैंने एसेट का डेप्रिसिएशन जो है ज्यादा लेस किया होगा, तो वो लेस किया हुआ तो वो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। सो दैट इज मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ गुडविल के लिए मुझे क्या करना होगा, परचेज कंसिडरेशन, दैट मीन्स मैंने आपकी कंपनी को कितने में एक्वायर किया, लेस कैश पेड, मतलब कि उसको पे करने के लिए मैंने कितना कैश पे किया होगा, लेस कितने शेयर उसमें इशू हो चुके हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, राइट। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन को हम कंसीडर करते होते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन दैट इज फ्यूचरिस्टिक कंसिडरेशन, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन दैट मीन्स कि वो कंसिडरेशन इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब फ्यूचर में होने वाले आउटकम के ऊपर है। अब guys, I can't make you remember all the formats. You have to ये learn this format by your own,
right? Because in the limited time period, so I can't mug up these formulas. But yes, अगर मैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बात करूं, तो गुडविल के लिए आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन, दैट मीन्स कि आपको अक्वायर करने के लिए मैंने कितने पैसे दिए, राइट? सो इसका शॉर्टकट आई कैन टेल यू दैट यस, कि परचेज कंसिडरेशन, राइट, सपोज आई हैव परचेज 70%, तो ये 70% के लिए मैंने कितना पैसा आपको दिया, एंड 30% सपोज करो इट्स माई एनसीआई का पोर्शन, सो एनसीआई का पोर्शन, राइट, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि मुझे वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला होगा, राइट, ये मुझे ले लेना है, राइट। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, गुडविल आ जाएगी। अब जो ये गुडविल आता है ना, ये मेरा पॉजिटिव आएगी, तो बैलेंस शीट में मैं एसेट दिखा दूंगी। और अगर ये नेगेटिव आएगी, बहुत रेयर चांसेस में, तो ये क्या है, मेरी बार्गेन परचेज है। और बार्गेन परचेज को मैं क्या करती हूँ, पी एंड एल क्रेडिट कर देती हूँ एज एन इनकम। सो ये हो गया मेरा गुडविल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, दैट मीन्स जो मेरे बचे कुचे हैं, राइट, लाइक इफ आई हैव अक्वायर्ड 70%, तो 30% पोर्शन इज मेरा एनसीआई वाला। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। देन उसके बाद आई विल बी एडिंग द एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन विच आई हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट 2, स्टेप नंबर 2। वो मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी इनटू, मतलब एनसीआई का परसेंट, इफ एनसीआई इज 30%, तो 30% से, एंड लेस एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। इफ क्वेश्चन इज गिविंग मी इम्पेयरमेंट का पोर्शन, तो मैं इम्पेयरमेंट को डिवाइड करूंगी एनसीआई वालों में एंड ग्रुप वालों में, डिपेंडिंग अपॉन मैं मेथड कौन सा यूज कर रही हूँ, राइट। मैं एनसीआई की इम्पेयरमेंट लेस कर दूंगी एंड एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट वुड बी माई आंसर। दैट मीन्स यही वाला मैं बैलेंस शीट में कल को शो करूंगी। नेक्स्ट आई हैव रिटेन्ड अर्निंग, जीआरई, दैट इज पेरेंट एंड सब्सिडरी टोटल दोनों की रिटेन्ड अर्निंग। अब मैं इसको लिए मुझे क्या करना है, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग फुल मैं कंसीडर करती होती हूँ, दैट मीन्स बैलेंस शीट डेट पे। देन उसके बाद पेरेंट का शेयर होल्डर, राइट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 से आया था, डिफरेंस प्री एंड पोस्ट दोनों का डिफरेंस निकाल के, वो मैं पेरेंट का शेयर निकालूंगी, दैट आई विल बी एडिंग। इसमें अगर कोई गुडविल है, राइट, इम्पेयरमेंट में, वो मैं लेस कर दूंगी। कोई डेफर्ड कंसिडरेशन है, कोई अनरियलाइज एसेट है, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, कोई अनरियलाइज इन्वेंट्री रिलेटेड है, कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन है, वो मैं ऐड करूंगी। सो आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस एडजस्टमेंट, आई विल बी पुटिंग द मेरी रिटेन अर्निंग, ग्रुप रिटेन अर्निंग की फिगर, ये मेरी बैलेंस शीट में जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एनी अदर एडजस्टमेंट्स, सो अगर मेरी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो उसको मैं एलिमिनेट करूंगी, परचेज सेल रिलेटेड, राइट। बैलेंस शीट की क्या होती है, रिसीवेबल पेएबल की, वो मैं हटाऊंगी। लोन्स की होती हैं, इंटरेस्ट पेड की, डिविडेंड की, ये सारी मैं एडजस्टमेंट हटाऊंगी। कैश इन ट्रांजिट की अगर कोई एंट्री है, तो आई विल बी अज्यूमिंग दैट कैश हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, राइट। एंड उसके लिए मैं क्या एंट्री डालूंगी, डेबिट बैंक क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल। तो उस वाले सिनारियो में क्या होगा कि मेरे रिसीवेबल जो है बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड कैश जो है मेरा बढ़ जाएगा। तो उसका मुझे इफेक्ट देखना है बैलेंस शीट में, राइट। और इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है, तो उस वाले सिनारियो भी मुझे आई हैव टू कंसीडर जस्ट लाइक दैट आई हैव रिसीव्ड दैट इन्वेंट्री बाय द ईयर एंड। सो यस, परचेजेस बढ़ जाएगा, राइट, परचेजेस में आ जाएगा, एंड डेज पेबल जो है मेरे क्रेडिट हो जाएंगे। सो यस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन एवर आई विल बी डूइंग दिस कैलकुलेशन, कि यस की कंटीजेंट लायबिलिटी को भी मैं फेयर वैल्यू पे करूंगी, एंड गुडविल के ये कंसोलिडेशन के पूरे चैप्टर में आई हैव टू पुट ऑल द एंट्रीज एट फेयर वैल्यूएशन पे। अगर मेरा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है, उसके लिए मैं प्रोविजंस नहीं क्रिएट कर सकती, ये बात हमने अभी पहले भी की थी, राइट। बिकॉज ये मेरी बात की आइटम्स हैं, पोस्ट एक्विजिशन आइटम है, सो आई डोंट नीड टू कंसीडर एनीथिंग विच इज माई पोस्ट पीरियड रिलेटेड। नाउ इंटेंजिबल एसेट है, वो मेरी फेयर वैल्यूएशन पे दिखाएंगे, बिकॉज ये मेरे बाद में आए हैं, राइट। And if the acquirer is obliged to issue replacement share-based payment to employees of the subsidiary in exchange of their existing scheme, then the fair value of the replacement scheme must be allocated between purchase consideration and post-acquisition remuneration expense.
गाइस, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ी सी एसबीआर लेवल की है, आपको इतनी ट्रिकी नहीं आएगी, बट मैं स्टिल आपको बता देती हूँ कि यस, कि अगर यू नो यस, एंड शेयर बेस्ड पेमेंट इज नॉट योर पार्ट, सो रिमूव दैट, राइट, बिकॉज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ if SBR also, I have consolidated these topics, so that's why this adjustment is not at all required for you. नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव गुडविल मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस वाले सिनारियो में आई हैव टू इमीडिएटली क्रेडिट दैट एज एन इनकम इन माय P&L. Now, NCI at acquisition can be calculated as follows. So, if I talk about the NCI at acquisition, so yes, NCI की calculation, मुझे क्या करनी है, मेरे पास दो मेथड होते हैं इसके लिए. क्वेश्चन मुझे बताएगा प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड में जाना है या फिर मुझे फुल गुडविल मेथड में जाना है. तो अगर NCI, अगर मैं फुल गुडविल में जा रही हूँ तो फेयर वैल्यूएशन पे करूंगी, और इसको मैं नॉर्मली पेपर में गिवन होता है, बट येस, इस वाले सिनारियो में मैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करती हूँ, एक्वायर और एनसीआई दोनों के केस की. एंड ये अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट है, दैट मीन्स कि एनसीआई की परसेंटेज क्वेश्चन में मुझे गिवन होगी 20, 30, 40 वट एवर द केस में भी, और इनटू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी विच आई विल बी कैलकुलेटिंग, राइट. अब एनसीआई जो है मैं सिर्फ सिर्फ एट्रीब्यूटेबल टू एक्वायर वाली ही कैलकुलेट करूंगी, एंड गुडविल की इम्पेयरमेंट उस वाले सिनारियो में पूरी आ जाएगी. नाउ इन केस ऑफ माई मिड ईयर एक्विजिशन, नो गाइस, अगर इफ वी एक्वायर अ कंपनी एट द मिड ईयर, राइट, तो हम क्या करते हैं दैट इफ अ पेरेंट कंपनी एक्वायर द सब्सिडरी कंपनी एट द मिड ईयर, तो नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द डेट ऑफ बेसिस ऑफ की मिड ईयर के बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं. हम एसेट्स और लाइबिलिटीज तो हमारी देखो पूरी की पूरी होंगी, बट हम इस वाले सिनारियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होते हैं, बेसिकली मेरी P&L फिगर्स जो होते हैं, मैं उसको रेवेन्यू को, इनकम को, एक्सपेंसेस को, वो मैं प्रोपोर्शन बेसिस पे कैलकुलेट कर देती हूँ, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो इफ अ पेरेंट एक्वायर द सब्सिडरी मिड ईयर, द नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मस्ट बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द नेट एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन. सो एक्विजिशन तक के प्रॉफिट्स में जाऊंगी. And yes, to calculate this, normally assume that as profits after the accrue evenly over the period. So हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो पूरे साल में इक्वल ही डिवाइड होते हैं. सो यस, एनालिसिस ऑफ द कंपनी विद इन अ ग्रुप. तो अब देखो, अगर कभी भी आपको कभी भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे क्या करना होता है, इनको एलिमिनेट करके अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है. एंड यस, इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट हो सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटर कंपनी लोन्स, राइट, तो मुझे अगर एनालिसिस की मैं बात करूं, इस वाले सिनारियो में कई बार ऐसा होता है कि हम ड्यू टू वी आर द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड ग्रुप्स, राइट, वी आर द पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट तो चार्ज कर रही हूँ, बट दैट कुड बी एट अ लेसर इंटरेस्ट रेट. एंड यस, और उस वाले सिनारियो में क्या होगा, जिससे क्या होगा कि मेरा बेनिफिट हो सकता है कंसोलिडेशन का. So yes, if that is the case, which may be change if the company is removed from the group, because अगर ऐसा कुछ है, तो अगर मैं उस कंपनी को ग्रुप की पार्ट ना हो, तो मेरा ग्रुप का इंटरेस्ट रेट दैट कुड बी डिफरेंट. इंटर कंपनी रिसीवेबल पेएबल है, तो वो हो सकता है मैंने जान करके दिखाया है टू मैनिपुलेट रेट, राइट. तो इस वाले सिनारियो पे मुझे इसका ध्यान रखना है. इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट हो या फिर शेयर्ड एसेट, कॉस्ट एसेट्स हो, तो उनका मुझे खास करके ध्यान रखना है. एंड दीज आर द एरियाज फॉर थ्योरी पर्पज ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज हमारा कंसोलिडेशन का P&L का चैप्टर. तो जब कभी भी मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, तो मुझे ग्रुप स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वैसे ही बनेगा. अब मेरे को P&L क्या बनाना है, कैसे बनाना है, P के प्रॉफिट, S के प्रॉफिट, दोनों के कंबाइन निकालने हैं. कैसे निकालूंगी, P के सारे इनकम इकट्ठे, S के सारे इनकम इकट्ठे ऐड ही हमें करने हैं, एंड इनके एक्सपेंसेस सबके ऐड, और इनको मैं प्रॉफिट, देखो कंसोलिडेशन क्या होता है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे होता है. सो यस, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है, इन्वेंट्री है, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है, इसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही होगी. एनसीआई, अब एनसीआई देखो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, कि सब्सिडरी का पैट, उसमें से मुझे क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इंक्रीज ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. जैसे कि हम पहले कर रहे थे कि अगर मेरा एसेट है, एसेट बढ़ेगा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा. तो देखो वहां पर हमने जो एडजस्टमेंट की थी प्रीवियस चैप्टर में, दे वर रिलेटेड टू मेरा बैलेंस शीट का एरिया, और हर इफेक्ट जो होता है मेरा ड्युअलिटी इफेक्ट चलता है. सो अगर डेप्रिसिएशन वहां पर बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा. तो मुझे अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये देखना है कि
उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या है, पी एंड एल रिलेटेड इफेक्ट क्या है। सो यस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंटरी गुड सोल्ड बाय सब्सिडरी टू पेरेंट्स। और अगर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को कुछ बेच रही है, तो उसने पर्प, बेसिकली इसको हम पर्प बोलते हैं। सो पर्प जो है एलिमेंट ऐड ऑन किया होगा, अब वो पर्प के एलिमेंट जो ऐड ऑन हुआ हुआ है, उस पर्प एलिमेंट को रिमूव करके चलना पड़ेगा। मैंने ज्यादा दिखाया हुआ है, उस प्रॉफिट को मुझे कम करना पड़ेगा। गुडविल की इम्पेयरमेंट है, वो मुझे लेस करनी पड़ेगी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड कर रही हूँ, राइट। सो उसके बाद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, और उसके बाद ये मेरा हो गया टोटल प्रॉफिट। उसके बाद मुझे क्या करना है, एनसीआई वालों के पास कितनी होल्डिंग है, मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है कि इस एनसीआई वालों के पास 30% है, 40% है, उसकी एडजस्टमेंट मैं करूंगी, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली मैं एनसीआई की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लूंगी। अब अगर मुझे इसकी एडजस्टमेंट्स है, देखो इंटर कंपनी सेल परचेज है, आई हैव टू रिमूव दैट, राइट। इंटरेस्ट और लोन जो है, अगर इंटर कंपनी है, रिमूव करके चलूंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे टू एलिमिनेट फ्रॉम द फाइनेंस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इनकम। सो अगर ये इंटर कंपनी वाली है, तो अगर मैंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो वो मुझे फाइनेंस कॉस्ट से हटाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे उसमें ऐड होगा। ठीक, एंड ऐसे ही अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, वो भी मुझे हटा के चलनी पड़ेगी, कौन सी, पेरेंट और सब्सिडरी की इंटर कंपनी वाली। एंड ऐसे ही इनके केस का डिविडेंड होगा, वो डिविडेंड अगर मुझे सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है पेरेंट कंपनी को, तो वो भी मुझे हटाना पड़ेगा। Unrealized profit should be reduced from the inventory and added to the cost of sales to show the total true cost. Basically मेरे को कॉस्ट में वो चीज बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम में से वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो मुझे हटाना पड़ेगा, सो दैट कि मैं ये इफेक्ट देख सकूं कि अगर ये ग्रुप की ये जो गुड्स हैं अगर ना बिकी होती, तो ट्रू कॉस्ट ऑफ ग्रुप पे पड़ी होनी चाहिए, तो ग्रुप की ट्रू कॉस्ट पे उसको मुझे दिखाना पड़ेगा। एंड यस, अगर इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट ऑन प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑन सेल टू बी एलिमिनेटेड। और अगर वो एसेट, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एसेट जो बेचा है एंड वो प्रॉफिट पे दिखाया है, तो प्रॉफिट एलिमेंट हटाऊंगी। और दूसरी बात ये कि एसेट, अगर नॉन करंट एसेट हमने एक कंपनी ने बी कंपनी को दिया है और एक्स्ट्रा वैल्यू पे दिया है, तो एसेट एक्स्ट्रा वैल्यू पे दिया है, तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगा होगा, तो वो डेप्रिसिएशन की भी मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी, ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, वो डेप्रिसिएशन मुझे कम करना पड़ेगा, राइट। इफ द गुड्स आर सोल्ड बिटवीन द ग्रुप एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर वो गुड्स जो है मेरी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हैं, तो उसकी वैल्यू की मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे कि वो ग्रुप को कॉस्ट पे पड़ रही है, राइट। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल टू बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर इम्पेयरमेंट है उसकी भी मुझे करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। अब if the asset of the subsidiary are counted at the fair value, then the excess depreciation on fair value to be charged on the consolidated statement of P&L. सो अगर ये एसेट है, ये मेरे फेयर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं कंसोलिडेटेड P&L में करूंगी। अगर एक्विजिशन मेरी साल के मिडल में हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके अकॉर्डिंगली मैं डेप्रिसिएशन जो है मेरा एसेट उस ईयर के बेसिस पे करूंगी। मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकती, मैं जब अक्वायर करूंगी उतना ही टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन एड ऑन करूंगी। सो देयर आर फ्यू मोर रूल्स, राइट, कि अगर if the consolidation of OCI income is asked, follow the same steps as P&L। तो ऑब्वियसली अगर मेरा OCI का बोला हुआ है, तो OCI वाला सिनेरियो भी सेम ही होता है। रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉसेस का इफेक्ट मुझे देखना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का गेन लॉस वो मुझे देखना पड़ेगा। अब इसका एनालिसिस के सिनेरियो में मुझे इंटर ग्रुप लोन्स, राइट, तो बेसिकली अगर इंटरेस्ट लो रेट पे हुआ है, तो उसका मुझे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में मैनिपुलेट हो सकती है, मुझे उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। इंटर ग्रुप सेल परचेज का इफेक्ट देखना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट और शेयर्ड कॉस्ट एसेट, इनकी कॉस्ट का इफेक्ट मुझे देखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज माई एसोसिएट। So guys, associate देखो, बेसिकली आई एम नॉट गोना टू टेल यू अबाउट डेफिनेशंस वाइज नहीं जाएंगे हम। एसोसिएट क्या होता है, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है, दैट इज माई 50% से ज्यादा वाला शेयर होल्डिंग। बट 50% से कम वाले शेयर होल्डिंग में जब हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज आई हैव द पावर टू पार्टिसिपेट बट आई डोंट हैव कंट्रोल, राइट। सो दैट इज मेरे पास एसोसिएट वाला रिलेशनशिप। अब एसोसिएट के केस में वी डोंट फॉलो लाइन बाय लाइन बेसिस, वी फॉलो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, दैट मीन्स कि पेरेंट एंड सब्सिडरी के केस में हम क्या कर रहे थे कि सब्सिडरी के सारे एसेट एंड लायबिलिटी जो है हम एड ऑन कर रहे थे। बट एसोसिएट के केस में क्या होता है कि हमें जो इक्विटी अकाउंटिंग करनी होती है, जस्ट उसका शेयर दिखाना होता है कि यस एसोसिएट की कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग हमारे पास है।
So yes, accounting whereby the investment is initially recorded at cost and adjusted thereafter for the post acquisition change in the investor share of net asset of the associates. अब इसको कैसे बनाएंगे, बेसिकली कितने के एक्वायर की एंड पोस्ट एक्विजिशन शेयर होल्डिंग का प्रॉफिट परसेंटेज, राइट, उसके बेसिस पे इसकी एडजस्टमेंट मैं क्या करूंगी, अलग से P&L में सेपरेटली दिखाऊंगी। इसमें से अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से रिड्यूस करूंगी, जो कि हम पहले भी वहां पर करते थे, बट इसमें कुछ कुछ सिनेरियोज जो है, कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो है हम पेरेंट सब्सिडरी वाले लेंगे, बाकी सारा वैसा नहीं है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ इन्वेंट्री होगा वो मैं लेस करूंगी इन्वेंट्री में से, रिटेन अर्निंग में से, जैसा भी सिनेरियो होगा, दैट इज मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट रिपोर्टिंग डेट। अब एसोसिएट्स के रिगार्डिंगली अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, कितने की प्रॉफिट शेयर होल्डिंग है, राइट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में लेस करूंगी, इम्पेयरमेंट लॉस है वो मैं लेस करूंगी, एंड प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट आ जाएगा। अब अगर मेरी फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट जो है, एसोसिएट की नेट एसेट की जो है मेटेरियली डिफरेंट है मेरी नेट एसेट से, तो मुझे उसमें सेम ही एडजस्टमेंट करनी है जैसे मैं सब्सिडरी के केस में कर रही थी। एसोसिएट मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं होते, दैट मीन्स इस वाले सिनारियो में मुझे एसोसिएट्स में बैलेंस शीट P&L वैसे कुछ भी नहीं बनाना है। एंड यस, एसोसिएट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L में वैसे के वैसे ही उनके बीच में सेल परचेज ट्रांजैक्शन है तो वैसे के वैसे ही हम दिखाएंगे। अनरियलाइज्ड ट्रेडिंग की प्रॉफिट की वो मैं एलिमिनेट करूंगी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट में से, जैसे पेरेंट सब्सिडरी के केस में हो रहा था। डजंट मैटर पेरेंट बेच रही है या एसोसिएट बेच रही है, बट यस ये हम एसोसिएट के प्रॉफिट में से वो लेस करेंगे। अब इक्विटी अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन जो वहां पर पेरेंट एंड सब्सिडरी की एग्जाम्पशन थी वही सेम एग्जाम्पशन है कि यस कि ये अगर मेरा एसोसिएट जो है IFRS 5 के अकॉर्डिंगली है या फिर मेरी पेरेंट कंपनी जो है उसको एग्जाम्पशन मिल रही है, सेम सिनारियो, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्पोजल। अगर मैं डिस्पोजल की बात करूं तो अब देखो P&L, अगर सब्सिडरी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्पोजल मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, सिर्फ सब्सिडरी की मतलब कि अगर सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ हो रही है और पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रही हूँ, तो डिस्पोजल मतलब सेल करके कितने पैसे मिले लेस कितने अमाउंट पे मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो किया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अगर मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करनी है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ मुझे दिखाना है, कितने का सेल हुआ, दैट इज मेरा डिस्पोजल प्रोसीड्स लेस, अगर मेरा सब्सिडरी का अगर मुझे निकालना है, राइट, तो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट कितने की थी उसको मैंने निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल डेट पे कितनी थी, गुडविल कितनी थी, मतलब सब्सिडरी वाला शेयर, राइट, 70% 60%, राइट, गुडविल एट डिस्पोजल ऐड कर दूंगी, उसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, ये लेस करने के बाद जो कॉमन फिगर होगी उसको मैं लेस कर दूंगी डिस्पोजल प्रोसीड्स में से, आई विल गेट माई प्रॉफिट और लॉस। अब गेन हो या लॉस हो वो मैं सेपरेटली अलग से दिखाती होती हूँ, राइट, एक्सेप्शनल आइटम्स में, बिकॉज दिस इज नॉट रूटीन पर्पस थिंग कि मैं एक सब्सिडरीज जो है बेच रही हूँ। सारी फिगर्स टिल डिस्पोजल, जैसे एक्विजिशन के केस में क्या होता था, दैट आई वाज शोइंग द इस डेट पे मैंने एक्वायर किया तो इस टाइम पीरियड के बाद वाला सारा हम ऐड ऑन करते थे, अगर अब मैं यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ बैक एंड जाएंगे तो इस टाइम पीरियड तक की सारी फिगर जो है मैं ऐड ऑन करूंगी P&L में। एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी की अगर डेफिनेशन क्राइटेरिया में मेट हो गया, दैट इज डिसकंटिन्यूड डिप्रेशन की डेफिनेशन क्राइटेरिया में अगर मेट हो गया, तो ऑब्वियसली मैं सिंगल एंटिटी IFRS 5 में जो हमारा ट्रीटमेंट था हम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली इसको शो करेंगे रादर देन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। Now next is my last topic which is interpretation guys. Interpretation is very important, ये भी आता है और ये काफी easy है। मुझे बैलेंस शीट और P&L रिलेटेड रेशियोज याद रखनी है, राइट, आपको क्या बताना है कि उस रेशियो का मीनिंग क्या है, उस रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका क्या इफेक्ट होगा, और सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप ये बताओगे कि यस वो रेशियो कम होगी या बढ़ गई तो क्या इफेक्ट होगा। रेशियोज के फॉर्मूला आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको क्या बताना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट मीन्स कि हम कंपनी की प्रॉफिट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। लिक्विडिटी वर्किंग कैपिटल रेशियो को मैं कंपनी की पोजीशन दैट मीन्स करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और ये सारी रेशियोज कौन सी है मेरी बैलेंस शीट रिलेटेड रेशियोज है। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशियो से मुझे क्या पता चलता है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो इफ यू गेट टू नो दीज बेसिक पॉइंट्स ना, तो अगर आपको इसके बारे में इंटरप्रिटेशन का इशू आ जाएगा देन यू कैन इंटरप्रेट दैट ओके इस रेशियो का ये पर्पस है, जैसे कि गियरिंग रेशियो, कंपनी कितनी गियर्ड है, हाईली गियर्ड कंपनी उतना ही ज्यादा रिस्क, राइट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, PE रेशियो, सो ये सारे रेशियो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड रेशियोज हैं।
अब इनका अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो हम कंपैरिजन रेशियो से इजीली कर सकते हैं, एंड यस मैं ट्रेंड्स, रिलेशनशिप, पास्ट ट्रेंड, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें देख सकती हूँ, बट यस इट्स बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल अकाउंट्स, राइट, एंड यस इन पे भी मैनिपुलेशन हो सकती है, हम क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकते हैं, एंड एक कंपनी और दूसरी कंपनी का कंपैरिजन हम करें, बट दोनों कंपनीज जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं, सो दैट कुड बी द इशू, एंड यस ऐसा कोई भी नहीं है कि यस कि आई कैन से दैट दैट इज द परफेक्ट रेशियो, किसी भी रेशियोज में कुछ ना कुछ ट्रबल्स हो सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द रेशियोज की सिनारियो। अब अगर मुझे ये था मेरा प्रॉफिट सिनारियो में, राइट, अगर नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अगर मुझे एनालिस करना है, तो देखो नॉन फॉर प्रॉफिटेबल कंपनीज में मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो हमारा वहां पर क्या मोटिव होता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट, दैट मीन्स कि मैं अपने इनपुट आउटपुट रेशियो देखती हूँ, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट देखती हूँ, और बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज एट लीस्ट कॉस्ट पे मैं ये देखती हूँ, एंड ये कुछ रेशियोज जो रहती हैं इंटरप्रिटेशन वाइज जो है हमारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम होती हैं, बट कुछ जैसे कि ईपीएस जैसे रेशियोज होती हैं नहीं काम आती, सो मुझे ये कंसीडर करना है कि इस कौन कौन सी रेशियोज है हमारे पास वहां पर यूजफुल होंगी। इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो है गाइस हमारे पास कंसोलिडेशन का भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो रिलेटेड भी आ सकता है, सो यस मुझे वो बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट इट, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, एंड उसके बेस पे आपको कमेंट्री करनी होती है इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। इंटरप्रिटेशन में प्रैक्टिकल पोर्शन इज जस्ट 40%, 45%, बट उसको एक्सप्लेन करना इज अ मेजर टास्क। Now all the revision from the short note is done, guys. It was a crisp revision. It's not the whole syllabus coverage, just to memorize you. You can revise these notes. You can revise from the technical articles. Just remember one thing, and that is the most important thing. Don't ignore the resources by ACCA. Till this time, you should have attempted at least one mock, but even if you have not attempted, at least try it now. दो मॉक मिनिमम पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपने देखे जाने हैं, फर्स्ट टिप, राइट। नेक्स्ट टिप इज वॉच टाइम while attempting the mock, right, because time management is a critical task. Major student fail just because they are not able to manage the time. They knew the answer, but they are not able to manage the time, so make sure to practice these mocks according to the time management thing. Another tip, uh, recent technical articles, important technical articles, don't ignore them. Don't ignore examiner report, right? At least two examiner report from the recent past paper are mandatory requirement. And yes, we have debrief video also, right? So don't ignore them. And last and the most important, guys, past papers have a very crucial role. So past paper करके जाइए, and then please be motivated. Never compare yourself with your friend's performance, your peers performance, so that can demotivate you. Just keep on track, do your hard work along with your smart work, and in case you need any guidance, you can definitely contact me. Thank you and good luck for your ACC exams.